वीक 10 की जो मैंने स्लाइड्स अपलोड की थी वो आप लोगों को रिसीव हो गई? जी मैम। जी ओके। मैम हो गई। वो एक यस दफ़ा हम मैम, हमें डिस्कस मिल यस गई। मैम। एक दफ़ा वो लेक्चर हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया ना? क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ जो आपको इंटरेक्टिव सेशन में समझ आती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। ओके मैम। Bismillahirrahmanirrahim, week 11, and the chapter is electrical components and electricity. We will cover it in two parts, okay? One for today and one for tomorrow. First of all, what is the purpose of this presentation? We have to know that what is meant by magnetic flux, what is Faraday experiment, what is the law, Faraday law and the Lenz's law, expression for induced EMF, and the you can say mutual induction and self-induction, eddy's current, and some additional informations. Magnetic flux. Do you have any idea what is meant by magnetic flux? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैम एक पासिंग पार्ट में एरिया से कितनी भी, हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी एरिया में से पास करती हैं? पास कर दी। मैम, Very good, passing of very good. magnetic field lines from any area. Very good. So far, we have discussed about the magnetic field lines and the areas from which the magnetic field are passing, but we haven't discussed about the flux. That is actually the, you can say, the number of magnetic field and the magnetic line of forces passing normally through that surface. Okay. It can also be defined as the product of the area of the surface and the component of magnetic field normal to that distance. Okay, here is the diagram. You can see very clearly ds is shown by the area, and you can see there is n is denoting the number of lines and b is denoting the magnetic field. So the flux, magnetic flux, which has been denoted by this sign, is equal to b dot area is equal to b dot area dot number of lines. So direction of the magnetic field lines along the normal to the surface, and n is the normal unit vector. These are some additional informations. Okay. Then positive flux. Magnetic flux is positive. Actually, it is dependent upon the angle parameter. If magnetic flux is between the range 0 to 90, it will be called as positive flux. And if it will be, you can say 270 to 360 degree, like in negative direction, it will be called the magnetic flux, negative magnetic flux. Okay. And zero magnetic flux is when there is no number of field lines or there is area that is parallel to field lines. ठीक है? You can see कि यहाँ पर angle लिखा हुआ है कि जब आपका एंगल बिल्कुल उस जो आपका एरिया है उसके बिल्कुल पैरेलल साथ खड़ा हो, यानी कि एरिया ऐसा है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो वो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। आपके एरिया को ऐसा चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करनी चाहिए। ठीक हो गया? और यहाँ तक ये था। देन simply we can write as magnetic flux is equal to b dot a is denoting the area and cos theta. Okay. If I will consider this in MCQ or short question, I will only consider this formula which is mentioned here. Okay. यस मैम। Okay Then मैम। hmm, magnetic flux across a coil can be changed by changing what are GG. Okay, okay, okay. What are the factors that can affect the magnetic field? Strength of magnetic field. Obviously, if the area is at some certain distance from the magnet, we can say that this area has lesser number of magnetic field lines passing through. So obviously, if lesser number of magnetic field lines are passing through any area, so magnetic flux will be low. Okay. Then the area of cross section of the coil. Obviously, the orientation of the coil, magnetic field theta, or any combination of the above. As I already mentioned that the orientation readily involve in the determining of magnetic flux. Then strength of magnetic field and area of cross section of coil. Must remember these points. Then there are some you can say information about the magnetic flux. Basic informations that magnetic flux is a scalar quantity. SI unit of magnetic flux is Weber or Tesla meter square. देन CG's यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है,
because we only deal with the SI unit of system whenever we deal in the physical therapy, because we are so much restrained to our certain modalities, and उनमें भी हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं वो हम SI यूनिट पे यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि SI यूनिट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो हो रहा होता है। आप कोई भी मोडालिटी, इफ़ यू वांट ऑर्डर सम मोडालिटी, आप सम उसकी कोई कैटेगरी लिखते हो, आप फ्रीक्वेंसी लिखते हो, आप इंटेंसिटी लिखते हो, तो आप जो SI यूनिट है उनको फॉलो करते हो। इस वजह से आपको बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि इनकी जो SI यूनिट है, you have to only mention that. Okay, then magnetic flux associated normally per unit area is called magnetic field density. If you're talking per unit area, then the magnetic flux will be called the magnetic flux density. Okay, or strength of magnetic field, or magnetic induction also. We are going to discuss magnetic induction. Okay, then what would Faraday did? Faraday just try to induce some kind of current, some kind of magnetic field using a magnet and a solenoid. What he did, what he did and concluded that magnetic flux linked with the coil changes relative to the position of the coil, and the magnet due to magnetic lines of magnetic line of force cutting at different angles some cross sectional area of coil. अब क्या हुआ है कि एक उसने कॉइल लिया है, अब कॉइल जो है उसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है, यू कैन सी। अब जब भी वो मैग्नेट को करीब लाता है कॉइल के और दूर लेके जाता है, तो वो कहता है कि जो कॉइल है और जो गैल्वेनोमीटर है वो एक खास रीडिंग शो करता है। वो खास रीडिंग क्या है, वो बताती है मैग्नेट जब कॉइल के करीब आया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing number of magnetic field lines passing through that solenoid is more in number, so that galvanometer show a reading that is higher than the reading which were taken when the magnet was away from the solenoid. जब मैग्नेट सोलेनॉइड से दूर था तब की गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कम आई है, और जब मैग्नेट सोलेनॉइड के करीब था तो मैग्नेट की रीडिंग ज्यादा आई है। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए एक इंडक्शन का मैकेनिज्म जो है वो सामने आया था हमारे पास, कि मैग्नेट करीब आ रहा है, दूर जा रहा है, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट से सोलेनॉइड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस तरह से सेट हो गई कि वो एक समझ लें कि सेल्फ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने लगा। वो हम आगे उसको डिस्कस करते हैं। अब उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? पहली उसकी ऑब्जर्वेशन थी बताने के लिए कि रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट किस तरीके से इफेक्ट कर रही है। देन इंड्यूस्ड पोलैरिटीज ऑफ मैग्नेटिज्म इन द कॉइल किस तरीके से इफेक्ट कर रही हैं। ऑब्वियसली जब मैग्नेट करीब आ रहा है उसके और दूर जा रहा है, जब दूर जा रहा है तो नॉर्थ नॉर्थ है, और जब करीब आ रहा है तो नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो आमने सामने। द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, that the induced current EMF is available only at long as there is relative motion between the coil and magnet. सबसे important जो इसकी बात जो अब तक हम कंसिडर करते हैं वो यही थी कि मैग्नेट के मूव करने से एक खास मूवमेंट सेट हो गई थी सोलेनॉइड में इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से जाहिर इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने की एक सी फोर्स जनरेट हो गई थी, जिसकी वजह से अपना सोलेनॉइड का अपना करंट प्रोड्यूस होने लगा था, और वो करंट तब तक ही मौजूद था जब तक मूवमेंट हो रही थी मैग्नेट की। ठीक हो गया। देन उसने कुछ चीज़ें जो है वो मेंशन की कि कॉइल कैन बी मूव बाय फिक्सिंग द मैग्नेट। उसने एक ये चीज़ कंक्लूड की कि अगर मैं मैग्नेट को उसी जगह पे रखूं लेकिन कॉइल को मूव करता रहूं, तब भी तो एक रिलेटिव मोशन जो है वो क्रिएट होगी। इस सूरत में भी जो है करंट प्रोड्यूस होगा। बोथ द कॉइल एंड मैग्नेट कैन बी मूव टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर, देयर मस्ट बी रिलेटिव वेलोसिटी। ऑब्वियसली आप रिलेटिव लेके चलना चाह रहे हो तो उसमें आप ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो। Then magnetic flux linked with the coil changes relative to the position of the coil and magnet. Obviously, I mentioned earlier that if the magnet is near to the solenoid, there will be more current, and if the magnet is away from the solenoid, there will be current, but lesser in number. Yeah, you can say lesser in quantity. Then current and hence the deflection is large if relative velocity between the coil and magnet, and hence the rate of change of flux. And what he concluded, अगर मैं इस स्लाइड को कंक्लूड करूं तो दो तीन बातें मेरे जहन में आती हैं कि मैग्नेट करीब होगा
तो करंट ज्यादा होगा। मैग्नेट करीब आ रहा होगा तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी गैल्वेनोमीटर की, और दूर जा रहा होगा तो करंट तो तब भी होगा लेकिन नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी गैल्वेनोमीटर की, क्योंकि जब वो दूर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स भी रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है गाइस, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? इज देयर एनी क्वेश्चन और इज देयर एनी इशू? नो मैम, कोई इशू नहीं है। Okay. Okay. No, Then ma'am. Faraday, when noticed that magnetism produce current in the solenoid, he started his second experiment. In the second experiment, he selected two coils, one primary circuit and other is the secondary circuit. और यहाँ पे आप देखोगे कि एक तरफ उसने करंट अप्लाई किया है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरह से शो होगी वो हम देखते हैं। When primary circuit is closed, current grows from 0 to maximum value. All right. During the period changing, current induced changing magnetic flux across the primary coil. Obviously एक स्विच था, एक स्विच पहले ओपन था, वो स्विच क्लोज हुआ, जब स्विच क्लोज हुआ तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो करंट ने मैग्नेटिक फ्लक्स को जो कि दूसरे कॉइल में प्रेजेंट था इंड्यूस किया। ठीक है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एसोसिएट किससे करता है? सेकेंडरी कॉइल से, और उस सेकेंडरी कॉइल में उसने ईएमएफ इंट्रोड्यूस करवाई। समझ आई बात? प्राइमरी कॉइल था, प्राइमरी कॉइल में उसने स्विच बंद किया, स्विच बंद किया तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई। जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो रही है तो होगा क्या? मैग्नेटिज्म भी तो प्रोड्यूस होती है ना इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। अब प्राइमरी सर्किट में मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस हुई है वो सेकेंडरी सर्किट को किस तरह से इफेक्ट कर रही है कि सेकेंडरी सर्किट में भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। और वो कैसे हमें पता चलेगा? जो हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। ठीक है, induced EMF and hence deflection in galvanometer last only as long as current in the primary coil and hence the magnetic flux and in the secondary coil changes. जब तक प्राइमरी कॉइल में करंट प्रेजेंट रहा सिर्फ तब तक ही सेकेंडरी कॉइल में हमें करंट शो हुआ। हालांकि आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए, देर इज नो वायर कनेक्शन, देर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन देम, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर that the force of magnetism produced in the primary coil due to the electric current is just influencing the secondary coil. Okay, and that is called the induced current or induced EMF. So we can conclude like when the primary circuit is open, current decrease from maximum value to zero value. Obviously यहाँ पर भी आप समझ लें कि अगर हम कॉइल को मूव नहीं कर रहे तो हम उसके अंदर प्रेजेंट करंट को छेड़छाड़ कर रहे हैं। कॉइल खोलते हैं तो एकदम करंट कम होने लग जाता है, कॉइल हम उसको क्लोज करते हैं उसके बटन को या उसको हम मतलब समझ लें ऑन करते हैं तो एकदम करंट प्रोड्यूस होता है, बढ़ता बढ़ता अपनी नॉर्मल वैल्यू में आता है। During this period changing, current induced changing magnetic flux across the primary coil. Obviously, I mentioned earlier that whenever this current is present in any of the material, it will cause magnetism. All right. Then changing magnetic flux is linked across the secondary coil and induce current in the secondary coil. However, note that the direction of current in the secondary coil is reversed and hence the deflection in galvanometer is opposite to the previous case. बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि जब हमने क्लोज किया सर्किट तो गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग तो शो की। फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर मूव्स फ्रॉम दिस मिड लाइन टुवर्ड्स दिस, ओके, एंड व्हेन वी स्टॉप द करंट गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग तब भी शो की लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि एक केस में करंट की मिकदार बढ़ रही थी और अदर केस इन द सेकंड केस व्हिच आई मेंशन जो करंट की जो क्वांटिटी है जो उसकी समझ लें कि एक मिकदार है वो कम हो रही थी। ठीक है, स्ट्रेंथ उसकी कम हो रही थी। यहाँ तक कोई इशू है आपको? नो मैम। नो मैम। ओके, ये सारा मैकेनिज्म समझ आ गया कि फैराडे ने क्या किया। फैराडे ने दो काम किए हैं, एक उसने पहले करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया, फिर उसने सोचा कि अगर एक चीज दूसरे को इंड्यूस कर सकते तो क्यों ना मैं कॉइल्स पे ही एक्सपेरिमेंट करूं जिसमें एक में मैं करंट दूं और दूसरे में देखूं कि करंट होता है कि नहीं, और उसका वो एक्सपेरिमेंट भी बहुत सक्सेसफुल रहा। उस बेसिस पे उसने अपने दो लॉ दिए हैं। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट एंड ईएमएफ एंड हेंस करंट इज इंड्यूस्ड इन दैट सर्किट। ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट याद आ गया ना? मैग्नेट करीब आया
तो करंट बढ़ गया, मैग्नेट दूर गया तो करंट तब भी था उसमें मौजूद लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ठीक हो गया। और करंट तब तक ही मौजूद रहा जब तक कॉइल मूव होता रहा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता रहा, ठीक हो गया, जो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ा। देन इन द सेकंड लॉ, magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. Obviously, what was the rate of change of rate of change of magnetic flux? सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि वो कभी स्विच को ओपन कर रहे हैं, कभी क्लोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनकी मूवमेंट जो है वो इंड्यूस हो सके, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इंड्यूस होगी तभी एक कॉइल में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा और तभी दूसरा कॉइल जो है वो उसकी मैग्नेटिज्म को रिस्पॉन्ड करके उसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर उसने एक समझ लें कि अपना एक लॉ उसने दे दिया। उसने कहा कि जो ई है, एनर्जी है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस या एरिया, ठीक हो गया। इसी की उसने 2-3 फॉर्म्स आगे इनको सिंपल करके दे दिया और एंड उसने कंक्लूड क्या किया है कि जो टोटल इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको उसने ई से शो किया है, वो क्या होगा कि चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स नंबर 2 बड़ा वाला एंड माइनस फ्लक्स नंबर 1, मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर 1 जो प्रीवियस वाला था, मतलब जिसकी वैल्यू छोटी थी, डिवाइडेड बाय टी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से उसने इंड्यूस्ड ईएमएफ को बता दिया। बच्चों यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आपको? जी मैम। अच्छा, Yes, आप ma'am. मुझे एक एक करके बताएं, आपके माइंड में क्या आता है कि ये हमें क्यों उन्होंने कहा, ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं इंड्यूस करंट? इंड्यूस करंट का इन्होंने हमें ये मकसद देने का क्या था? मैम जैसे वगैरह टेंस वगैरह हम यूज करते हैं मॉडलिटीज वगैरह, तो उसमें भी करंट वगैरह होते हैं जो पास होते हैं। बिल्कुल। वेरी गुड, ठीक हो गया। फिर बेसिकली वो जी जी फिर वो मैम एक्सपोजर के लिए हम लोगों ने एक रेज रखी होती हैं, रेड लाइट रेज, वो भी बिल्कुल, इसी हम से रेड रेस कहते हैं। वेरी गुड, ठीक हो गया। अब बेसिकली हम कुछ मोडेलिटीज ऐसी यूज करते हैं, उन मोडेलिटीज में सबसे पहले नंबर पे जो मैं मेंशन करूंगी वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर है, जिसके अंदर बकायदा ऑप्शंस होती हैं कि आप फैराडे करंट यूज करना चाहते हैं, गैल्वेनिक करना चाहते हैं, कौन सा करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि फेराडे है कौन, उसने क्या चीज, उसने लॉ क्या दिया है, ठीक है, उसका करंट बेसिकली किसको टारगेट करता है, उसके करंट का हमारी बॉडी पे क्या असर होता है, तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे हमने मोडेलिटी लगाई है, एक स्टिमुलेटर है जिसका मैंने एक हेड यहाँ पे अटैच कर दिया है, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस पे के मिड में कहीं पे, और एक उसकी इंजर्शन पे कर दिया है। तो अब मैंने करना क्या है, मैंने सिर्फ इस मसल को मूव करवाना है। अब दे तो मैं करंट रही हूँ, लेकिन उस करंट की वजह से मेरी फिंगर में मूवमेंट इंड्यूस हो रही है। अब डिपेंड करता है, इफ आई एम गिविंग फेरेटिक करंट विल इंड्यूस सम अदर काइंड ऑफ फोर्सेस। वो हम आगे बाकायदा उनके ग्राफ्स पढ़ेंगे कि एक करंट ने आपकी बॉडी में कौन सी फील्ड सेट की है, 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए, उसने आपकी बॉडी में कौन सी फोर्सेस जनरेट की हैं, उसने आपके मसल्स को कैसे जो है वो कंट्रैक्ट करवाया। मेरी ये फॉर अल्लाह ना करे कि फिंगर काम नहीं करी, मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई रेडियल पाल्सी का पेशेंट आ जाता है, आप जैसे कि आते भी हैं जिसको किसी को गलत इंजेक्शन लग जाता है, आप लोगों को पता है ना रेडियल पाल्सी क्या होती है? यस मैम। क्या होती है? मैम इंजेक्शन गलत लग जाता है ना तो बाजू से ना गिर जाती है और वो वर्क करना छोड़ देती है एकदम से। तो इस वो कोई जो सी है और ना हमारी रेडियल पाल्सी, मैम रेडियल पाल्सी जो सी है ना वो उसके साथ एकदम से डैमेज हो जाती है, तो मैम वो मैंने एक पेशेंट पिंच हो देखा जाती था। है शायद, इस तरह रेडियल कुछ नर्व, करके था। मैंने रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है। देखा मैम रेडियल नर्व जो है वो इसमें अफेक्ट होती है ना। वेरी गुड, मैम मैंने एक पेशेंट देखा था, उसको ना गलत इंजेक्शन लग गई थी, तो उसका इतना बड़ा इफेक्ट हो गया था कि उसकी फिर बाद में सर्जरी हुई थी उसको इम्प्रूव करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह होता है। कुछ इंजेक्शंस आपको अगर सबक्यूटेनियस लग जाते होते हैं और वो दे आर नॉट मेंट टू बी सबक्यूटेनियस, वो आईएम देने के लिए बने थे, तो आपके बहुत मोटा सा समझ लें कि एक
एडिनोमा सा बन जाता है उधर, जिसको सर्जरी से रिमूव करना पड़ता है। और रेडियल पाल्सी बच्चों असल में आपकी जो रेडियल नर्व है वो पोस्टीरियर साइड से, आपको पता है ना, एंटर होती है, फिर फ्रंट पे आती है, गुजरती है साइड से, रेडियल आपकी रेडियस के पास से, हेड के पास से घूमती है, फिर नीचे आ जाती है और पिछले तरफ के हाथ के मसल्स को सप्लाई करती है, एक्सटेंसर्स को, पता है ना ये बात का। अब यस मैम। होता यस क्या मैम। है कि हमारी रेडियल नर्व गुजरी, आपको मेरी बाजू विजिबल है सबको? हमारी रेडियल नर्व जो एंटर होती है एक्सिला से पोस्टीरियर साइड से, अब इंजेक्शन बेसिकली लगाना होता है डेल्टॉइड में, इस रीजन में, ठीक हो गया। अब जो इंजेक्शन बंदा है ना, जिसने इंजेक्शन लगाना है, उसने थोड़ा पोस्टीरियर करके लगा दिया, उसने आपकी ऐसे बाजू पकड़ी और बाजू इस तरह से पकड़ी कि जो आपका पोस्टीरियर रीजन था वो थोड़ा घूम के ऐसे आगे आ गया। आप सब अपनी अपनी बाजू पकड़ के देखें कि इस तरीके से उसने इंटरनली थोड़ी सी रोटेट करके पकड़ ली और सबका जो पोस्टीरियर पोर्शन था वो थोड़ा आगे आ गया। और जब उसने इंजेक्शन इंसर्ट किया ना, तो हुआ क्या कि उसने पियर्स कर दिया एक्सोन, जो नर्व थी ना उसको पियर्स कर दिया। अब जिस लेवल पे उसने पियर्स किया, होगा क्या कि जो कंडक्शन वेलोसिटी थी, जो आपकी नर्व थी, वो डैमेज हो गई। या तो उसका एक्सोन डैमेज हुआ होगा, ठीक है, या मल्टीपल एक्सोन्स और साथ में एपिन्यूरॉन डैमेज हो गई होगी। तो वो 3 स्टेजेस बनती हैं। अगर तो सिर्फ टच करके गुजरी है ऊपर से निडल, तो होगा क्या कि कंडक्शन तो ब्लॉक होगी, लेकिन किसी किस्म की समझ लें कि मूवमेंट लॉस नहीं होगी, एट्रोफी नहीं होगी। हाँ ये है कि मूवमेंट समझ लें कि थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन अब पेशेंट इसके तो इस तरह से आते हैं, बिल्कुल वो अपना बाजू ऐसे ऊपर नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि उनके सारे एक्सटेंसर जिनको सप्लाई कर रही थी रेडियल नर्व, वो तो हो गई है ब्लॉक, वो तो हो गई है रप्चर। अब होगा क्या कि हमको उसको स्टिमुलेट करना है। अब हम फेरेडिक करंट यूज करेंगे या गैल्वेनिक करंट यूज करेंगे, या हम उन करंट्स में से भी कौन सा मोड यूज करेंगे। अब एक मोड होता है परसिस्टेंट मोड, उसको कहते होते हैं। अब उसमें वो ऐसा मोड होता है कि आपने जब उसको एक दफा ऑन किया ना, वो बस ऐसे ही कर देगा, आपके मसल को पकड़ ही लेगा जोर से, ठीक है। अब मुझे वो मोड नहीं चाहिए, मुझे पल्स मोड चाहिए कि एक टाइम रेस्ट का हो और एक टाइम कंट्रैक्शन का हो, जिससे मेरे बाजू की ये मूवमेंट हो, फिर नीचे जाए, फिर आए। ये मूवमेंट तो मैं वॉलेंटरी कर रही हूँ ना, लेकिन ये फिर वो मोडेलिटी करती होती है। इससे क्या होता है कि सिग्नल्स जो है वो आपकी जो नर्व से पास कर रहे होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा ना समझ लें कि बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो इस वजह से वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दीज करंट्स, और इन कंडक्शन इफेक्ट्स क्या हैं इनके बारे में भी हमें पता हो। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब एक पेशेंट है, छोटा बच्चा है, उसको रेडियल नर्व पाल्सी हुई, उसको मैंने लगाई हुई है मोडेलिटी, और वो मकनातीस से खेल रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो मकनातीस से खेल रहा है, तो आप सोचें क्या होगा उसके साथ। मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसको इफेक्ट करेगा, जो करंट लगा हुआ है उसको, ठीक है। उसकी हो सकता है कि वो मोडेलिटी कुछ और तरह से कुछ कर दे, उसको कोई झटका, हैवी किस्म का उसको कोई शॉक मिल जाए। तो एक तरह से समझ लें कि प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे भी हमें इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। कि मैं बच्चे से कहूंगी कि बच्चों ये मकनातीस दूर रखें, और अगर उसने कोई घड़ी पहनी हुई है, आयरन की है, ऐसी कोई, क्योंकि जाहिर है वो भी तो एक मेटल है और उसमें से करंट पास कर सकता है, तो मैं उसको कहूंगी कि बार बार हाथ ना हिलाए या ये घड़ी उतार दें। और अक्सर कुछ इतने अच्छे थेरेपिस्ट होते हैं, वो तो पहले ही बता देते हैं कि आप घड़ी उतार दें या इस तरह की कोई लोहे की चीज है तो साइड पे कर दें। क्यों? क्योंकि उनके पास इसका बहुत अच्छा नॉलेज होता है, मेडिकल फिजिक्स उनकी बड़ी अच्छी होती है, उनको पता होता है कि इंड्यूस हो जाएगा करंट, करंट इंड्यूस हो गया तो मैं फॉर एग्जाम्पल 0.2 वोल्ट पे चला रही हूँ और वो 10 वोल्ट पे चला गया, तो पेशेंट का तो दिमाग को झटका लग जाएगा, ठीक है। तो ये वजह है जिस वजह से हम ये पढ़ रहे हैं। बच्चों की बातें देखो जरा कितनी ज्यादा हो गई हैं। ओके मैम। ठीक हो गया? जी मैम। यस मैम। ओके, अब अगर हम बात करते हैं लेंसेज लॉ की। अब फैराडे ने तो इतना बता दिया कि करीब ला रहे हैं, दूर ला रहे हैं, करंट बन रहा है, हम ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिज्म से सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन लेंसेज ने क्या बताया? बच्चों आप लोगों की उधर भी अजान हो रही है, यहाँ पे क्योंकि हो रही है, मैं एक मिनट जरा ब्रेक ले लूं। यस मैम हो रही है। यस मैम यस मैम ले लें। अजान सुन लेते हैं।
Thank you, Khubab. I am already having water. Okay, let's resume our lecture. I was talking about the lenses law. As I already mentioned, that Faraday only described that current or magnetism will be induced. He didn't mention that what will be the effect of direction on the change or on the induced EMF. So lenses continue his study, and he concluded that the direction of induced EMF or induced current is such that it opposes the change that is producing it. Obviously, it is well clear that north and south poles exist, and as I already mentioned that when something is bringing closer, opposite poles are present, and if something is taking away, opposite sorry same poles are present. That is, if the current is induced due to motion of magnet, then the induced current in the coil set itself to stop the motion of magnet. Okay, if the current is induced due to change in current in primary coil, then induced current is such that it tend to stop the change. यानी कि हर चीज अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करती है. फर्स्ट लॉ है कि कायनात की हर चीज अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करती है. ठीक हो गया. और उसी रूल को इंड्यूस करंट लॉ भी फॉलो कर रहा है, और उसी के नतीजे में उसने बताया कि if the current is induced due to motion of magnet, it will oppose the direction of motion of magnet, and if the current is induced due to the primary coil change in the current in primary coil, तो it will the then the induced current is such that it tend to stop the change. यानी कि हर चीज जो भी स्टॉप है, जो भी चेंज आ रहा है, उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक हो गया. देन लेंजेस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में वही चीज मेंशन होगी कि अपनी स्टेट को मेंटेन करने की हर कोई कोशिश करता है. कोई भी नहीं चाहता कि मेरे अंदर कोई चेंज आए. ठीक है. इसको अगर आप मैं इसको आप अगर लाइव एग्जांपल से समझ लें कि कोरिलेट करूं, सो आई कैन मेंशन कि कायनात में कम लोग हैं जिनको आप दुरुस्त करवाओ और वो आपकी बात मान लें. अदरवाइज लोग जिद बन जाते हैं, जिद बना लेते हैं, और वो नहीं मानते हैं आपकी बात को ना. वो एडमायर नहीं करते हैं कि आपने कुछ किया है या आपने उनके लिए सही बात की है, क्योंकि ये लॉ है, ये हर चीज़ फॉलो करती है. ये इंसान की जो साइकी है ये भी फॉलो करती है यही लॉ कि हम जो हैं हम ठीक है, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे. इसी तरीके से डिफरेंट ये जो करंट्स हैं, मैग्नेट्स हैं, ये भी इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं. देन लेंजेस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the change. Okay, opposes the change that produce it. It is this opposition against which we perform mechanical work in causing the change in magnetic flux. ओके, यानी कि क्योंकि अब जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ है वो तो खत्म कर देगा जो प्राइमरी कॉइल में प्रेजेंट है. अब हमारा क्या काम होता है कि हम एक मैकेनिकल वर्क कर रहे होते हैं, ताकि हम अगर वो अपोज कर रहा है तो हम आगे से अपनी कुवत लगा रहे होते हैं ताकि हम उसकी ऑपोजिशन को रोक सकें. Therefore, mechanical energy is converted into the electrical energy. Thus, Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy. If, however, the reverse would happen, that is, the induced EMF does not oppose or aid the change, then a little change in magnetic flux will produce an induced current, which would help the change of flux further, thereby producing more current. The increased EMF would then cause further change of flux, and it would be further increase the current, and so on. Obviously, अगर ये oppose ना कर रहा होता तो एक दूसरे को प्रोड्यूस करता और दूसरा तीसरे को प्रोड्यूस करता, और इस तरह से क्या होता कि इतनी एनर्जी, आप सोचें अपने माइंड में कि एक कॉइल में अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से दूसरे कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है,
और अगर वो जो दूसरा करंट दूसरे कॉइल में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्राइमरी करंट को अपोज ना कर रहा होता, उसको सपोर्ट कर रहा होता, तो सोचें कि कितना करंट प्रोड्यूस हो जाता, कि एनर्जी लॉ की वायलेशन हो जाती, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती और मतलब हमारी नेचर डिस्टर्ब हो जाती, तबाह हो जाती ना। तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें जो है ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये तमाम एक्सप्रेशंस हैं जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के हैं अकॉर्डिंग टू द बोथ लॉज। जो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले बताया कि डिपेंड कर रही होती है मैग्नेटिक फ्लक्स पे और टोटल जो आपका टाइम है उस पे, कि मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या है। ठीक हो गया। और अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें कॉइल में, तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फ्लक्स और सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है उसके साथ ये जो है वो माइनस में जा रहा है। Then induced EMF does not depend upon resistance of circuit where the induced current and induced charge depend upon the resistance. ये याद रखनी है कि induced EMF जो है उसका resistance से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो induced current और induced charge हैं वो ज़रूर resistance पे depend करते हैं। जाहिर है अगर एक metal है उसकी अपनी resistance इतनी ज़्यादा है कि वो electrons को इतना ज़्यादा वो motion gain करने का मौका ही नहीं दे रही, तो कैसे current produce होगा, ठीक है। लेकिन अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है और एक स्टैटिक वे पे हो रहा है, तो वो फोर्स जो है वो रेजिस्टेंस कभी भी इफेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक हो गया। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इफ वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इवन वी कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड हेंस ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन सर्किट एज डन इन फैराडे एक्सपेरिमेंट। वही चीजें रिपीटेडली नेक्स्ट स्लाइड्स में है। देन अदर मेथड वाज बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल अवेलेबल इन द मैग्नेट। अब जो magnetic flux can be changed by changing the area of loop A, which is acted upon by the magnetic field B, and hence EMF can be reduced in the circuit. जो एरिया था, ऑब्वियसली आप अगर उस एरिया ज्यादा एरिया है आपके पास, आपके नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अक्रॉस जो आ रहे हैं वो ज्यादा एरिया में है, तो ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, और अगर वो कम एरिया में तो वो कम करंट इंड्यूस होगा। सिमिलरली दे हैव मेंशन्ड दैट द लूप PQRS is slided into uniform and perpendicular magnetic field. The change, that is the increase in the area of coil under the influence of field, is dA in the time dt. D is mentioning here because there is some change ना, so D इसलिए mention किया गया। This cause an increase in magnetic flux. ऑब्वियसली आपका एरिया अगर बढ़ रहा है और जो टाइम है जिसमें से नंबर ऑफ जो लाइंस है वो पास करेंगे वो बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है। Then induced EMF is due to the motion of loop and so is called motional EMF. इंड्यूस्ड ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम मोशन का जिक्र कर रहे हैं, या तो हम करंट की मोशन को इफेक्ट कर रहे हैं, या हम मैग्नेट की मोशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या हम लूप की मोशन को डिस्टर्ब करें। दैट्स व्हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ। Then if the loop is pulled out of the magnet, just a minute, I am muting my mic. Then the induced EMF is due to the motion of loop, so called a motional EMF. If the loop is pulled out of the magnetic field, then E is will be obviously, अब मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप ही नहीं है, उस पर कोई असर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ईएमएफ जो है वो डिपेंड कर रही होगी उसकी डायरेक्ट वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी सिर्फ चेंज होने की उस पर डिपेंड कर रही है, और जब वो भी एक खास टाइम से बाहर चला जाता है तो इट विल नॉट इफेक्ट द मैग्नेटिक फ्लक्स और द इंड्यूस्ड ईएमएफ। The direction of induced current is anti-clockwise in the loop. We have already mentioned PQRS by Fleming rule, वो हम आगे डिस्कस करने लगे हैं कि क्या फ्लेमिंग रूल है, वो क्या बताता है। फ्लेमिंग रूल में आप थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को कंसिडर करते हो। थंब exhibiting the force and index finger exhibiting the magnetic field and electric current exhibiting by the middle finger.
ये तमाम एक दूसरे के 90 डिग्री पे प्रेजेंट है। आप सब इस तरह करके देख सकते हैं और आप इससे जज कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके समझ लें कि 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक करंट होगा, और इसी तरह जिस डिग्री पे ईएमएफ फोर्स होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के भी 90 डिग्री पे होगी और इलेक्ट्रिक करंट के भी। इससे हमें समझने में काफी आसानी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू लेंजेस रूल, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। वी हैव डिस्कस्ड दिस many of the time. Here, the cause of changing magnetic flux is due to the motion of loop and increase in the area of coil in the uniform magnetic field. दो चीजों को जो डिस्कस किया वो एक तो था कि मोशन ऑफ द लूप पे, और सेकंड था कि एरिया जो था उसका लूप का या कॉइल का। Then therefore the motion of loop is to be opposed. So the current is setting itself such that the Fleming left hand rule, the conductor arm PS experience force to the right, whereas the loop is trying to move to the left. अब इस लूप को देखें, PQRS, इसके लिहाज से उन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया है इस रूल को। PS का जो जिक्र हुआ ये कोई किसी चीज की एब्रीवेशन नहीं है बच्चों, ये इस लूप का नाम है। PS को प्रेजेंट है एट द राइट एंगल, और अब उसको ही वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि करंट इज सेटिंग इटसेल्फ बाय सच Fleming rule. The conductor arm PS experience force to the right, whereas the loop is trying to move to the left. अब लूप जो है वो अवे उसके मूव करेगी, लेकिन और जो फोर्स उस पे लग रही है वो राइट से लग रही है क्योंकि 90 डिग्री पे एक दूसरे के। अगेंस्ट दिस फोर्स मैकेनिकल वर्क जो हमें डन करना पड़ेगा वो क्या है? कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम अपने हाथ से लूप को इधर उधर मूव कर रहे हैं ना, तो वो मैकेनिकल वर्क है, उस मूवमेंट से हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्रिएट हो रही है। Then against this force mechanical work is done which is converted into electrical energy, जिसको हम कहते हैं induced current. Note यहाँ पे लिखा है if the loop is completely inside the boundary of magnetic field then what will happen? अब एक चीज है जो मैंने मेंशन कर दी कि वो सरासर रिलेटेड है मोशन से, अब उसकी मूवमेंट से। अब मूवमेंट ही नहीं है, अब फायदा क्या? मैं पूरी लूप क्या पूरे 200 मकनातीस भी लाके उधर रख दूंगी, कोई करंट नहीं बनेगा बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट अराउंड। सो देन देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नो इंड्यूस करंट इन द लूप। देन फ्लेमिंग राइट हैंड rule I have already explained you people. Then other method is by changing orientation of the coil. We have mentioned that the orientation of coil is such that some lines must pass through that. अब 90 डिग्री तक भी ठीक है, सम 45 डिग्री तक भी ठीक है, लेकिन अगर हम और नीचे आते हैं और इस तरीके से हमारी अगर फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये फील्ड है और यूं सारे करंट इसमें से पास कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली करंट पास कर जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं, फील्ड लाइंस ये हैं और ये एरिया है, इनमें 90 का एंगल है, करंट पास कर रहा है क्योंकि cos 91 हो गया। लेकिन अब होगा क्या कि अगर ये एंगल थोड़ा कम होता जाए, ठीक है, कम होता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 45 पे आ गई, कम होते होते अब ये एंगल जो है ये जीरो हो गया। अब इनके दरमियान में कोई एंगल नहीं है, जीरो है। cos जीरो क्या होता है? पैरेलल हो गया ना। पैरेलल हो गया। कोई अब ओरिएंटेशन ने देखो कितना चेंज कर दिया कि मैग्नेट भी मौजूद है, मूवमेंट भी मौजूद है, लेकिन हुआ क्या है? कॉइल की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो यहाँ पर आपकी जो पूरी की पूरी सोच है वो तब्दील हो जाती है। एरिया भी है, नंबर ऑफ टर्न्स फिर इसमें हम बहुत जो है वो देखते हैं। अब इसमें डिस्कस कर लें। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज बाय चेंज द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द लूप विद मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड हेंस ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट। NBA cos theta ये बड़ा फेमस हम पहले पढ़ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया इज n, डिनोटिंग बाय n एट टाइम t विद एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है ओमेगा के साइन से शो करते हैं। थीटा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू t बी द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे थीटा इक्वल टू 0 पे आ गया है, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू NBA cos एंगुलर t, और अगर उसको हम n देखें तो E इज इक्वल टू यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, या हम कह लें कि जो हमें हासिल हो रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ मूवमेंट के बाद, वो क्या होगी? मैक्सिमम ईएमएफ इनटू साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं बच्चों? 2 स्लाइड्स रह गई हैं, बाकी फिर हमारा जो काम है वो अगला है, अगले लेक्चर का। बिल्कुल भी समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं? यस मैम, आ गई है समझ। आगे ठीक है।
जी सेम मैम। बात सेम बात यही लिखी हुई है कि देखो आप करंट को कभी बढ़ा रहे हो कभी कम कर रहे हो, कभी बढ़ा रहे हो कभी कम कर रहे हो, तो आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट बन रहा है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। आर यू पीपल गेटिंग माय पॉइंट? कि आप एक दफा मैक्सिमम ईएमएफ पे जा रहे हो उसको 90 डिग्री पे रख के, और आप उसको आहिस्ता आहिस्ता देखो। मेरा कर्सर शो हो रहा है आप लोगों को? कर्सर नो मैम। यस यस मैम, यस नो मैम, यस मैम, मैम नो शो मैम, नो मैम। शो हो रहा है मैम। ये जो मैम राइट। अब हो यस गया। मैम, शो हो रहा। ये देखो ये कर्सर, आप जहां पे इस वक्त ये कर्सर है ये मैक्सिमम ईएमएफ है। अब देखो जैसे आप नीचे आता जा रहे हैं, क्यों नीचे आता जा रहा है? क्योंकि मैं एंगल चेंज करती जा रही हूँ। फिर वो इतना हो गया कि वो नेगेटिव में ही चला गया। नेगेटिव में भी देखो एक मैक्सिमम पॉइंट है, नोट कर रहे हैं बच्चों? वो कहाँ का है पॉइंट? जब एक दफा ऐसे था, घूम के दोबारा जब ऐसे आया, क्योंकि 360 का टोटल एंगल होता है ना। ठीक जी हो जी। गया? यस मैम। यहाँ से अंदाजा लगाएं, 0 डिग्री पे 0 है। पाई बाय 2 हम कहते हैं ना, पाई बाय 2 हम कहते हैं 90 डिग्री को। पाई बाय 2 यस पे मैम। मैक्सिमम हो गया, पाई हम कहते हैं 180 डिग्री को। 180 डिग्री पे फिर 0 हो गया, फिर 270 डिग्री को हम 3 पाई बाय 2 कहते हैं। उसमें वो फिर मैक्सिमम तो हुआ, लेकिन नेगेटिव वैल्यू में मैक्सिमम हुआ। फिर वो पॉजिटिव होना शुरू हुआ, और फिर वो 0 हो गया 360 पे। फिर वो 90 पे जाते जाते फिर से। तो ये ऑल्टरनेटिंग एक वेव हमें मिल जाती है, साइनोसाइडल वेव इसको हम कहते हैं। ठीक हो गया ना? आप लोगों को यस। पता है ना साइनोसाइडल वेव का? इसका जिसमें आपको अपर एंड लोअर जो है वो मिलती हैं वेव्स, क्रस्ट एंड ट्रफ टाइप। यस मैम, ट्रांसवर्स वेव Yes, जो है। जी बिल्कुल। If initial position of coil is taken as 0, that is normal to the coil, is at 90 degree with magnetic field, then थीटा बिकम थीटा प्लस पाई बाय 2। ये वही बात उन्होंने बताई है कि थीटा प्लस पाई बाय 2 और ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है ना, तो उसकी वैल्यू को पुट किया है तो वही E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। So alternating EMF and consequently alternating current can be expressed in sine or cos function. Okay, get it? यस मैम। तो ये इतना कुछ पढ़ने का मकसद, ये हमसे जनरेटर बनवाना चाहते हैं। हमें सिखाना चाहते हैं कि मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर्स। जनरेटर्स में भी हम मैकेनिकल फोर्स जो है वो देते हैं इनिशिएट करने के लिए। उसके बाद एक आपको कोई भी मटेरियल चाहिए होता है, पेट्रोल हो गया या कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि यूज करता है अपनी एनर्जी को, और फिर फर्दर उसको कन्वर्ट कर रहा होता है। देन द नेक्स्ट थिंग इन आवर टॉपिक इज द एडीज करंट और फौकॉल्ट करंट। हमने एडिस करंट के नाम से तो इसका नाम सुना हुआ है, लेकिन फौकॉल्ट करंट के नाम से इसका नाम आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, बिकॉज मैंने भी इसको पहली बार ही पढ़ा। ठीक है, फौकॉल्ट करंट भी इसको कहते हैं। द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग लूपिंग करंट्स प्रोड्यूस इन अ सॉलिड मेटल ड्यू टू द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड इन द मेटल आर कॉल्ड एडी करंट। अब उसने क्या कहा है कि एक लूप है जिसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, चेंजिंग करंट। पहले तो हम ईएमएफ की बात कर रहे थे, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। अब हम किसकी बात करने लगे हैं? करंट की बात करने लगे हैं। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहते हैं कि एडी करंट जो है ये एक किस्म का वो करंट है जो कि इंड्यूस करंट है, पहली बात। और दूसरी बात है जो चेंज हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है? ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये है एडी करंट। तीन बातें आपने याद रखनी है, इंड्यूस्ड करंट है, कॉइल या लूप की में मौजूद है, और तीसरा क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक ब्लॉक में प्रेजेंट है। अब इसकी अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, इन इंडक्शन फर्नेस एडी करंट आर यूज फॉर मेल्टिंग आयरन और। ठीक है, अब इसके कुछ यूजेस लिखे हुए हैं, ये यूजेस जस्ट रीडिंग के लिए हैं, इनको हम लेकिन पढ़ लेते हैं। और सबसे एंड पे देखें, इन डायथर्मी, हम डायथर्मी यूज करते हैं बच्चों, हम डायथर्मी यूज करते हैं। नहीं मैम, हम नहीं करते। हाय हाय, क्यों नहीं करते बेटा? शॉर्ट वेव डायथर्मी हम यूज करते हैं। जिना हॉस्पिटल कभी जाएं तो सही, उन्होंने इतने इतने बड़े पैड रखे हैं, पेशेंट जाते ही वो लिटा देते हैं और ऊपर शॉर्ट वेव डायथर्मी लगा देते हैं। डायथर्मी बेसिकली आपकी बॉडी में हीट इफेक्ट देने के लिए होता है, और ये यूज करता है लोकलाइज हीटिंग ऑफ टिश्यू को प्रोड्यूस करता है, और यूज करता है एडी करंट को। फिर से माइक म्यूट करना पड़ेगा।
मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम मैंने आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आपका आवाज नहीं माइक आ रही। म्यूट हो गया मैम। मैंने म्यूट कर म्यूट दिया किया था। है। मैंने म्यूट किया है, बाहर कोई फिर से आ गया था ना। मैम कोई आप बात लोग नहीं, होता रहता मैम ये तो असल में होगा। ये तो होगा। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अब ये जो टाइम है ना, ये यही होता है कि इसमें काफी लोग आ जाते होते हैं कभी, मतलब क्योंकि मार्केट्स ऑफ हैं तो वो इधर उधर फिर फिर के अपनी चीजें जो है वो सेल कर रहे हैं। बहरहाल शॉर्ट वेव डायथन यूज होती है। वो बच्चे जो कहते हैं कि हमें मतलब इसका थोड़ा सा बताएं कि हमें किस तरीके से हमारी फील्ड में हेल्प करे। तो देखो, हम अगर कोई चीज यूज कर रहे हैं, हम कोई चीज खाते हैं, हमें पता होता है कि ये अच्छी है या गंदी है, तभी हम खाते हैं ना। ठीक है, हमें उसकी पता होता है बैकग्राउंड। अब कुछ लोग हैं वो इतने ज्यादा समझने कॉन्शियस होते हैं, वो कहते हैं हमने घर का बना हुआ खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना, क्योंकि उनको मैकेनिज्म पता है कि बाहर कैसे बनता है। इसी तरीके से अगर मेरा कोई पेशेंट है एंड आई फील फॉर माई पेशेंट कि मुझे उसको अच्छा ट्रीटमेंट देना है, तो जो भी मैं उसको ट्रीटमेंट दे रही हूँ एटलीस्ट मुझे उसका मैकेनिक्स पता होने चाहिए ना, कि मैं उसको जो ट्रीटमेंट दे रही हूँ वो कर क्या रहा है ट्रीटमेंट। अब मैं उसको ट्रीटमेंट दिए जा रही हूँ, मुझे मैकेनिक्स ही नहीं पता कि वो कौन सा करंट यूज कर रहा है, उसकी बॉडी में उसका क्या इफेक्ट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एडी करंट अगर एक हार्ट के पेशेंट को लगा दूं, तो उसका तो ऐसे नोट पहले ही इतने डिस्टर्ब होते हैं, वो तो उधर के उधर ही 3-4 झटके खा के गिर जाए। लेकिन पाकिस्तान में तो होता है, लगाते हैं, लगा देते हैं। तो क्योंकि मुझे मैं पता है, आवाज यार आवाज कर रही है। बहुत ज्यादा कट रही है मैम। नहीं मैम आवाज सही मैम आ रही नहीं है। आ रही है। मैम आप अपना माइक, आपने आपका नेट का चेक किया? नेट से करें। मैम मुझे आपका ठीक नेट आ रही है। ठीक मैम है, हमें भी मुझे आपकी ठीक आ आवाज रही है। मैम बिल्कुल बिल्कुल सही फिट आवाज आ क्लियर। रही है। चलें फिर। अब किनको इशू है वो अपने माइक को देखें, ओ अपने नेट को देखें। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक हो गया। मैम आप डायथर्मी की बात कर रही थी, वो क्लियर कर डायथर्मी दो। की मैं आपको बात बता रही थी कि डायथर्मी शॉर्ट वेव डायथर्मी के नाम से यूज होती है, SWD के नाम से। आपकी जो लैब है आपके कॉलेज में, आप उसमें देखें कि एक पैड नुमा सा ना मौजूद होता है, 2 पैड्स होते हैं बड़े बड़े। अब जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप उसको जिना हॉस्पिटल में मैंने वैसे ही प्रैक्टिस देखी है, वैसे SWD मैंने जिना में यूज होते देखे हैं, मैंने रिफा में भी यूज होते हुए देखे हैं ये। लेकिन इनका इतना ज्यादा यूज मैंने PSRD में भी नहीं देखा और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी नहीं देखा, मतलब अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में इतना ज्यादा नहीं है। अब मेरे पास कोई हार्ट पेशेंट आया है, अब जैसे मैं अकेली ही क्लिनिक कर रही हूँ, मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि यार ये तुम्हारे लिए अच्छा है बुरा है। अब मैं उसको अगर SWD दे दूंगी, मुझे पता है कि यार ये तो एडी करंट को यूज कर रहा है, ठीक है, ऑलरेडी करंट जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, और ये हार्ट पेशेंट है, इसके SA नोड AV नोड पहले से ही थोड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं, मैं उसको लगा दूं अल्टरने, मतलब कुछ दिन बाद जब देखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट करेगा क्या कि उसके रिदम्स को मजीद डिस्टर्ब कर देगा, एरिथमियाज आने लग जाएंगे उस पेशेंट को। ठीक है, आखिर में होगा क्या, पेशेंट कहेगा मुझे घबराहट हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ ये। असल में वो हीट नहीं है जो उसको तंग कर रही है, वो उस मोडेलिटी से होने वाला इफेक्ट है उसके SA नोड पे और AV नोड पे। और अगर मुझे पता है कि, अगर मुझे नहीं पता होगा कि यार, मैं कहूंगी पेशेंट के देखें ड्रामे कितने हैं कि ये इससे हीट नहीं बर्दाश्त हो रही, मैं तो 1 पे लेवल पे लगाया हुआ है 2 पे, मेरे जेहन में नहीं ख्याल आएगा कि भाई मैंने तो एडी करंट ही नहीं पढ़ा, मुझे पता ही नहीं है एडी करंट क्या होता है या इसमें है भी कि नहीं। ठीक हो गया ना, अब समझ आ गया आपको? जी मैम ठीक है। यस मैम। ठीक है, आप लोग अपने पेशेंट्स पे यूज करेंगे। मैंने वैसे अपने क्लिनिक के लिए SWD नहीं खरीदी हुई, एक्सपेंसिव भी थी और वैसे मैं इसको इतना यूज भी नहीं करती थी, इस वजह से। आगे अगर हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की, तो सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग EMF इन सेल्फ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट एंड हेंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। अगर हम एक ही कॉइल की बात करते हैं और उसी कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे होते हैं इंड्यूस करने के लिए EMF को, और और होता क्या है, जिस हो क्या रहा होता है, करंट उसमें चेंज करते हैं हम, स्विच कभी ऑन करते हैं कभी ऑफ करते हैं, कभी ऑन करते हैं कभी ऑफ करते हैं, और उस वजह से सेल्फ इंडक्शन हो रही होती है, तो उसको हम उस वजह से अगर इंड्यूस हो रही होती है EMF, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, यानी कि खुद ही से इंड्यूस कर दिया इसने EMF।
The induced EMF oppose the growth or decay of current in the coil and hence delay the current to acquire the maximum value. आप देखो आमतौर पे एक तरह से ये रेजिस्टेंस का ही काम कर रही है ना, कि अब करंट को मैक्सिमम करंट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 80 तक लेनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, करंट प्रोड्यूस होना शुरू हुआ है कॉइल में और उस करंट के प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुआ और उस मैग्नेटिक फ्लक्स ने उसी कॉइल में एक और ईएमएफ इंड्यूस कर दी। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो भी सोर्स होगा जो ईएमएफ को इंड्यूस करेगा वो उसको अपोज करेगी। अब मतलब नॉर्मली तो करंट को 80 तक जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं गया, क्यों? क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ ने उसको अपोज कर दिया। ठीक हो गया, तो एक तरह से इसका नेगेटिव इफेक्ट आ गया। सेल्फ इंडक्शन is also called inertia of elasticity as it opposes the growth of decay of current। समझ आ गई है आपको? Self induction magnetic fields is directly proportional to I and proportionality constant यहाँ पे L यूज किया गया है, constant of proportionality है और ये known as the self inductance और coefficient of self induction। ठीक हो गया। देन अगर उन्होंने कहा है कि करंट 1 के इक्वल है, देन जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इज इक्वल टू होगा आपकी सेल्फ इंडक्टेंस के। ठीक हो गया। Self-inductance is defined as the magnetic flux linked with the coil when unit current flowed through it। ठीक हो गया। सेल्फ कंडक्टेंस यानी कि न्यू करंट जो उसके अंदर बना है वो असल में है क्या, वो है आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका लिंक है आपके कॉइल के साथ बेसिकली, जो कि कब प्रोड्यूस होता है, जब जो उसमें से करंट पास कर रहा हो वो यूनिट करंट हो। ठीक हो गया। उसके बाद EMF जो है चेंजिंग फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंजिंग टाइम और E इज इक्वल टू माइनस इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय द करंट और टाइम। और इसकी जो द सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड EMF सेट अप इन द कॉइल थ्रू विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज एन यूनिटी, यानी कि 1 करंट पास करो। ये उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया गया है, कॉइल से उसको एक्सप्लेन किया है। यूनिट बता दिया कि इसका यूनिट हेनरी है। सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन 1 एम्पीयर करंट इन द कॉइल लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स टू 1 वेबर। और इसी के 2-3 आगे से उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड पे उन्होंने लिखा है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड ड्यू टू एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। आवाज नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही? सही आ रही है मैम। सही आ रही है मैम मैम। मुझे सही आ रही है। सही आ रही है मैम, बिल्कुल लाउड एंड मैम उनका क्लियर। नेट का इशू होगा। हाँ, आपके नेट का इशू है मुझे लगता है, तभी आपको ठीक नहीं आ रही। आप रिकनेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। आवाज सही आ रही है। ओके, ठीक हो गया। सेल्फ इंडक्टेंस अगर सोलेनॉइड की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट हेयर इज द यू कैन से अ यूनिट और ये कॉफिशेंट है जिसको आप यूज कर रहे हैं इंडक्टेंस के लिए। इसकी एक सर्टेन वैल्यू है लेकिन वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। और वी ऑलरेडी नो दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड आई इज द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस 1 टर्न ऑफ द कॉइल, यानी कि एक कॉइल के साथ क्या उसका लिंक होगा, बी ए यानी कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन करंट म्यू नॉट एन एरिया ओवर, यानी कि उसकी टोटल लेंथ जो है उससे अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे पर टर्न के जो इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट मेरे पास। और क्यों किया है ये लोग याद रखें कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स और मैम अब तो आपकी आवाज कट रही है। मैम अब आपकी आवाज मैम मैम पियानो आपकी लग आवाज से रहा है। पियानो पियानो बज रहा है, ऐसी आवाज आ रही है। नहीं आ रही। मैम ये वाला आवाज पॉइंट दोबारा खराब हो गया। ये वाला पॉइंट दोबारा से बताएं। अब ठीक हुआ है पियानो? यस मैम, अभी तो ये तो आपने सही से कहा, अभी आगे का मैम अब एक ही पिच में जा रहा है। आवाज मैम अब clear ठीक है? नहीं आ रही? ठीक है अब? जी अब यस ठीक है। मैम ठीक है। ठीक है। मैंने म्यू बीट्स नोट का प्रोड्यूस हो बताया रही। है। अब ठीक है बीट्स?
अब Yes, ठीक है? यस मैम, यस मैम। Okay. मैंने म्यू नोट का बताया है कि मैंने इसको ये एक कॉफिशेंट है, परमेबिलिटी कॉफिशेंट इसको कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो नीचे लिखी हुई है, स्लाइड में मेंशन नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह करके जो नोट्स होते हैं स्लाइड्स के उसको ऊपर करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया? और जो सेल्फ इंडक्टेंस का मेन फॉर्मूला एंड पे क्या आता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। अगर आप डिवाइडेड बाय एल तब होगा जब आप सारे कॉइल का देखना चाहेंगे, ठीक है, और सॉरी जब आप सिर्फ एक टर्न का देखना चाहेंगे, और जब आप अगर सारे कॉइल का देखना चाहते हैं तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई। मैं इतना कम्प्लेक्स करके आपको नहीं दूंगी, मैं सिंपल एक ही फॉर्मूले पे स्टिक रहूंगी और उसी से ही आपसे पूछूंगी। ठीक हो गया ना? तो इस सिलसिले में आपने परेशान नहीं होना है। अगर फिर बात अगर हम करते हैं ना म्यूचुअल इंडक्शन की, तो साफ पता चल रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस में एक कॉइल का जिक्र हुआ है, एक सर्किट का जिक्र हुआ है। म्यूचुअल है, म्यूचुअल की बात हुई है, यानी कि दो चीजों की बात हुई है, दो या दो से ज्यादा की बात हुई है। तो म्यूचुअल ma'am. इंडक्शन क्या होगी कि induce करना EMF को in the secondary coil due to the change in current in the primary coil and hence the change in magnetic flux in the secondary coil. Obviously ये इस तरीके से, यानी कि दो कॉइल्स लगे हुए हैं, ये ना एक दूसरे के ऊपर ही रखती हैं। वैसे ये ना एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे होते इस तरह, मतलब इन्होंने ना सामने का व्यू दिखाया है। अगर मैं इनको आपको अलग अलग इस तरह रख के दिखा दूं, जैसे वो हमने पहले पढ़े हैं, एक कॉइल इधर रखा हुआ था और एक कॉइल इधर रखा हुआ था, वो तो फ्रेडी वाला, उन Yes, ma'am. उसमें Already थोड़ी know. फेरेडे वाला different थी। उसमें उसमें क्लियर था ना बिल्कुल, जो लेकिन सेकंड इसमें इन्होंने एग्जांपल थी उसकी। सेकेंड एग्जाम्पल थी उसमें क्लियर था। सेम इसकी प्लेसमेंट वही है, लेकिन आप समझ लो कि हम देख इस तरफ से रहे हैं, उसमें हम सामने से देख रहे थे और अब हम इस तरफ से देख रहे हैं, क्योंकि अब हम इनकी म्यूचुअल इफेक्ट की बात करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया? बात अगर हम कर रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसके लिए इन्होंने जो यूज किया है कॉफिशेंट वो है एम, कैपिटल एम, और 10। उन्होंने कहा है कि करंट अगर यूनिट करंट पास कर रहा है इसमें से, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इज इक्वल टू होगी मैग्नेटिक फ्लक्स के। दस म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन यूनिट करंट इज पासिंग थ्रू इट। दोनों की डेफिनेशन सेम है, लेकिन बात कहाँ पे आ जाती है कि कॉइल का फर्क आ जाता है। फिर इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम। देन उसको एंड उन्होंने यहीं पे किया है कि ईएमएफ भी इंड्यूस हो रही है वो इज इक्वल टू होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस के। ठीक है? दस म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी। यूनिट से मुराद है कि 1 यूनिट करंट जो है पास कर रहा है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट जो है वो है हेनरी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस is said to be 1 Henry when 1 ampere current in the primary coil link magnetic flux of 1 Weber across the secondary coil. Or mutual inductance is said to be 1 Henry when the unit current is passing through it. Same thing is this. Then उसको अगर हम सोलेनॉइड के लिहाज से करें तो ऑब्वियसली सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स का हमें ख्याल रखना होता है। बच्चों जैसे हमने प्रीवियस वाले में किया था कि हमने उसको डिवाइड कर दिया था उसकी लेंथ के साथ, हम एक टर्न से देखना चाह रहे थे, सेम इसी तरह हम करेंगे कि हम अगर 1 टर्न में देखना चाह रहे हैं, यानी कि N1 या N2 में देखना चाह रहे हैं, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे उसकी टोटल लेंथ के साथ, और एंड पे जो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आता है वो ये आता है म्यू नॉट N1 N2 ओवर A। N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, N2 इन द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक हो गया? यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि एक तरह से समरी है हमने जो पढ़ा है उस चीज की। अब वो आप लोग एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो चीज़ें मज़ीद जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हमारी जो स्लाइड है वो ट्रांसफार्मर की है, ये हम कल कवर करेंगे कल के लेक्चर में, हमारा जो वेंसडे का लेक्चर होता है। ठीक हो गया? क्वेश्चंस आर वेलकम। कोई भी क्वेश्चन है तो कर लें। आई एम टर्निंग ऑफ द रिकॉर्डिंग। मैम हमारे मिट्स का रिजल्ट कब आएगा? आपके मिड्स का रिजल्ट